25 ਦੇ ਕਰੀਬ STC ਐਂਡ ਅਬਵ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਟਲ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ 2025 ਤੋਂ ਦੀਵਾਲੀ 2026 ਅਗਲੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਠੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਆ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਟਾਈਮਸ ਬੈਟਰ ਹੋਵੇ, 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਉਸ ਬੜੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੇਲੀ ਵਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਥੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਥਾ ਔਰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ थे और ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਲੇ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਦ STC ਮੀਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਟਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਾਨਿਕ ਜੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੂਪ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਫੇਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫੇਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3-3.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 3-3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ STC ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 1-2 ਪੜਾਓ ਉੱਪਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ STC ਐਂਡ ਅਬਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ था 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਐਟਲੀਸਟ DTC ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ DTC था ਉਹ ZTC STC ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ 2026 ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਿਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਈਅਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ, ਧਨਤੇਰਸ ਦੀਆਂ ਔਰ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਿਕਾਸ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਲੈਪਿੰਗ ਆਪਾਂ ਵਿਕਾਸ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ। ਔਰ ਕਾਰਨ ਕਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ जिनको सुन के हर शख्स का खिल जाता है चेहरा, आपकी जबरदस्त क्लैपिंग के बीच में मैं इनवाइट करता हूं मिस्टर गौरव मेहरा सर। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग के नाल अपना गौरव मेहरा जी का ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जी शानदार तरीके से। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका इतने वार्म वेलकम के लिए और सो हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू वंस अगेन। अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले आप सब लोगों से फिजिकली लुधियाना में महाराजा होटल में मुलाकात हुई थी और आज दोबारा आप लोगों से मिलने का मौका मिला। बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। टीम का मोमेंटम देख के, टीम की ये लय देख के, टीम का जज्बा और जोश देख के तो कमाल हो रखा है। और मेरे को आज भी याद है कि जब वो STC मीट खत्म हो रही थी तो लास्ट में आपके जो सीनियर्स थे उन सब लोगों ने शिमला का एक कॉन्टेस्ट वहां से अनाउंस किया था और उस कॉन्टेस्ट को अनाउंस करने के पीछे एक ही मंशा थी कि ये जो मिशन STC या मिशन 100 STC के पीछे जो हम सब लगे हैं उसके अंदर आपके जीवन में आसानी आ पाए, आप ज्यादा से ज्यादा शिमला अचीवर्स को प्रोड्यूस कर पाए जिससे आपका STC का जो सफर है वो जल्दी से तय हो जाए। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक 30 लोगों ने अभी तक शिमला का कॉन्टेस्ट जो है वो अचीव कर लिया है दोस्तों, मैं जल्दी से एक एक करके उनका नाम भी लेता हूं। उन सब लोगों को भी बधाई देता हूं और उनके अपलाइंस को भी विशेष बधाई देता हूं जिनकी मेहनत से ये सब लोग कॉन्टेस्ट अचीवर बने। तो हमारे राकेश भारती जी हैं, हमारे धर्मपाल जी हैं, हमारे कुलदीप सिंह जी, जरनैल सिंह जी,
मलकीत सिंह जी, हमारे संदीप बंसल जी, आशीष गर्ग जी, हमारे वकील चंद जी, काका सिंह जी, हमारी मैम है मिसेस अर्चना गुप्ता जी, हमारे ओमकार चंद जी, हमारे लखविंदर सिंह जी, सुशील मित्तल जी, संत जसविंदर सिंह जी, हमारे पाल सिंह जी, जगदीश कुमार जी, गुरध्यान सिंह जी, मेवा सिंह, हमारे जसवंत सिंह जी, करमचंद जी, अरे वाह, हमारे मंजीत जी, हमारे लेखराज जी, बलवंत सिंह जी, हरमन सिंह जी, दर दर्बजीत सिंह जी, हमारे परमजीत सिंह, हमारे यादविंदर शर्मा जी, हमारे कुलवीर कुमार, हमारे दर्शन सिंह और हमारे दर्शन सिंह लुधियाना, हमारे दो हैं, दर्शन सिंह संगरूर से और दर्शन सिंह लुधियाना। आप सब लोगों को दिल से बहुत बहुत बधाई, और उनके अपलाइंस को भी, जैसे मैंने कहा दोस्तों, बहुत बहुत बधाई। आज एसटीसी मीट वैसे फिजिकली इस समय लुधियाना में चल रही है, उन लोगों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी अपनी ओर से बस दो बातें कह के आज के समारोह की समाप्ति करूंगा। पहली चीज दोस्तों, देखिए, ये जो एसटीसी है या ये जो मिशन है, इसके पीछे के लॉजिक को अगर आप समझते हैं, जितने भी लोग अभी एसटीसी नहीं हुए हैं, मैं उनके लिए कुछ चीजें बताना चाहता हूं। देखिए, जब भी आप कोई बड़ी चीज, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या आप एमबीए करना चाहते हैं या आप आईएएस करना चाहते हैं, तो एक प्रकार से हर चीज का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, और एक बार आप उस एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गए तो फिर ये पक्का है कि अगर आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में, एमबीए कॉलेज में, और अगर आपका आईएएस के अंदर सिलेक्शन हो गया, तो आगे पीछे ही सही, लेकिन जो भी व्यक्ति का एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम में पास होने के बाद एंट्री हो गई, भर्ती हो गई, फिर वो आदमी एक अच्छा इंजीनियर या एक अच्छा डॉक्टर या फिर एक अच्छा आईएएस बन के निकलता ही है। उसी प्रकार आप ये मानिए कि ये जो एसटीसी लेवल है, वो जो बड़े बड़े सपने हैं हमारे, 2,10,000 रुपए हफ्ता, आईटीसी रैंक, हमारे अलग अलग प्रकार के बोनसेस, और इस बिजनेस में एक स्टेबल करियर और ऐसी इनकम जो हमारे बाद हमारे परिवार को भी मिले, अगर आप ये सारी चीजें करना चाहते हैं, तो एक प्रकार से एसटीसी इसका एंट्रेंस एग्जाम है। और जो भी लोगों ने इस एंट्रेंस एग्जाम को पास करके इस एसटीसी लेवल को अचीव किया, अगर आप मल्टीप्लायर्स को देखें, तो फिर उनका पर्सनल हाथ, उनकी ग्रोथ का पर्सनल जिम्मेवारी मल्टीप्लायर अपने हाथों में ले लेती है। तो यही वजह है कि आपको हर महीने के अंदर एसटीसी मीट दिखाई देगी। इसके अलावा उन एसटीसीज को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी इनकम को स्टेबल रखने के लिए, इनकम को निरंतर बढ़ाने के लिए, आपने देखा होगा कि अब पिछले काफी महीनों से रीजनल मीट भी हो रही है। तो रीजनल मीट भी क्यों हो रही है? ताकि उन्हीं एसटीसीज की जो इनकम है वो स्टेबल हो जाए, उनकी जो टीम है वो और ज्यादा डेवलप हो जाए। तो जिन साथियों ने अभी तक एसटीसी लेवल को अचीव नहीं किया है, आपको आज मैं बताना चाहता हूं, जैसे ही आप एसटीसी लेवल को अचीव कर लेते हैं, आप केवल अपलाइन की ही नहीं, पूरी मल्टीप्लायर्स की, सारे को फाउंडर्स की पर्सनल जिम्मेवारी बन जाते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपना एसटीसी लेवल अचीव कर लिया, मेरी नजर में उसने अपना एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया, और अब वो हकदार है उस सारी बड़ी इनकम्स का और सारे बड़े बोनसेस का। तो ये एसटीसी रैंक इसीलिए दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए इतनी बड़ी बड़ी मुहिम छेड़ी गई, जैसा 26 जनवरी के बारे में भी विकास जी ने आप लोगों को बताया, और एक समय सीमा निर्धारित की गई कि इस महीने के अंदर, इस इतने महीने के अंदर हम अपने 100 एसटीसीज का निर्माण करेंगे। तो आप सब लोगों को मैं ये याद दिलाना चाहता हूं, इस रेस में जल्दी जल्दी दौड़िए। और मैं तो यूं कहूंगा, अभी 9 नवंबर को भी अगर आप माई लाइफ स्टाइल को भी देखें, देखिए इसको कहते हैं रीड बिटवीन द लाइंस, माई लाइफ के एंगल से भी देखें, तो 9 नवंबर के इतने बड़े प्रोग्राम में WTC, UTC, डायमंड, इन सब लोगों को बुलाया जा रहा है। आईटीसीज की सेलिब्रेशन हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी एसटीसीज को भी उतना ही सम्मानजनक स्टेज के ऊपर बुलाया जा रहा है। तो कंपनी को भी ये पता है, जो आदमी एसटीसी बन गया, फिर वो माई लाइफ का अपना हो गया, फिर माई लाइफ को छोड़ के वो जाने वाला नहीं है। और अब सब कुछ न्यौछावर उस एसटीसी की ग्रोथ पे कंपनी की मैनेजमेंट भी करने को तैयार है। तो 9 नवंबर का एक सुनहरी मौका है। आप एसटीसी बन के अगर 9 नवंबर को आते हैं, तो एक बहुत बड़े मंच पे आपको एक सम्मान मिलने का मौका मिलता है, जिस फोटोग्राफ को, जिस सम्मान के मूवमेंट्स को आप पूरा जीवन जो है वो अपने लिए एक यादगार पल बना सकते हैं। और ये सब करने के लिए सबसे आसान तरीका, जो वर्कबुक आपको दी गई, देखिए एक तरीके से सारा सारांश इस पूरी समरी को उस वर्क बुक के अंदर आपको बता दिया गया। अगर उस वर्क बुक के एक एक पेज को
चैप्टर बाय चैप्टर अगर आप आगे करते चले जाएंगे, तो जैसे आप मानिए एक स्टूडेंट होता है ना, एक स्टूडेंट को जब भर्ती किया जाता है तो एक सिलेबस दिया जाता है और बोला जाता है आप इस सिलेबस को पूरे साल अगर फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली अगली क्लास में आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो आपके लिए भी बिल्कुल सुविधाजनक करने के लिए, आपकी लाइफ को स्मूथ और सिंपल बनाने के लिए एक वर्क बुक का निर्माण करके आपको दिया गया। आप में से मैं जानता हूं कुछ लोग हैं जो बाय हार्ट उस वर्कबुक को फॉलो कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी वो लेके कहीं साइड में रख दी होगी, सोचा होगा चलो यार किसी अच्छे दिन उसको निकाल के देखेंगे। लेकिन अगर आप देखिए फर्स्ट आना चाहते हैं, अव्वल आना चाहते हैं, तो उस वर्कबुक को दोबारा निकालिए, अपने आप को या अपने अपलाइन के साथ बैठ के रिव्यू करिए कि भाई मैंने कहां कहां तक पहुंच गया, और अगर कहीं कमी पेशी है तो उसके लिए आप जरूर काम करिए। क्योंकि आप अगर उस वर्कबुक को फॉलो करते चले जाएंगे तो जो चीजें मैं या मेरे सारे साथी आपको समझा रहे हैं, ऑटोमेटिकली उस सिलेबस को पूरा करते करते आप उस ऊंचाइयों के ऊपर दोस्तों पहुंचते चले जाएंगे। बाकी आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को पुनः शिमला अचीवर्स को और निकालने के लिए भी मेरी ओर से शुभकामनाएं, क्योंकि शिमला का कॉन्टेस्ट भी इसी इंटेंशन से दिया गया कि जो भी एसटीसी बनना चाहता है उसकी जीवन को और आसान बनाने के लिए हम ऐसा और क्या कर सकते हैं कि वो जल्दी अपनी रैंक को अचीव करें। तो चाहे वो शिमला का कॉन्टेस्ट हो, चाहे वो दुबई हो, सब चीजें केवल आपको बहुत जल्दी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए ही डिजाइन की गई। और स्पेशली ये जो वर्कबुक है ये तो है ही कमाल, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा कमी एक ही चीज की थी, उसे कहते हैं एजुकेशन। पैसे की कमी इस बिजनेस में देखिए दोस्तों कभी भी नहीं थी, लेकिन इस बिजनेस में एजुकेशन और प्रोफेशनलिज्म की भारी कमी थी। इसी वजह से बहुत लोग आते थे लेकिन कामयाब नहीं होते थे। लेकिन मल्टीप्लायर्स ने इन दोनों कमियों को पूरा किया, एक प्रॉपर एजुकेशन, एक सिस्टम, एक सिलेबस आपको प्रोवाइड किया और एक प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से आपको वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जा रहे हैं। अब देखिए हमारी जो मीटिंग भी होती है, बिल्कुल मुझे याद है टीवीएस में भी ऐसे ही कॉर्पोरेट स्टाइल मीटिंग होती थी, इवन ये तो उससे भी बेहतर होती है, मैं सच बताऊं, क्योंकि वहां पे जो बात होती थी केवल टारगेट किसके कितने हुए और जिसके नहीं हो उसको डांट पड़ती थी। डेवलपमेंट की बात तो कभी टीवीएस में भी नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे बहुत प्रोफेशनल तरीके से हर एसटीसी को हर महीने बुलाया जाता है, उसकी ग्रोथ के बारे में समझा और आगे के प्लान बनाए जाते हैं। और उसी श्रृंखला में आज की मीटिंग भी वहां पे हो ही रही है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि जो समय सीखा, जो समय सीमा आपने निर्धारित की है अपने 100 एसटीसीज को निकालने की, मुझे पूरा इस बात का यकीन है कि उस समय सीमा से पहले ये टीम अपने 100 एसटीसीज को क्रिएट करने में कामयाब हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गौरव सर। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग गौरव मेहरा जी के लिए हम लोग कर सकते हैं जी, शानदार तरीके के साथ, राइट। और उसी के साथ साथ आज दोस्तों हम लोग यहाँ पे लुधियाना, मैं भी हिंदी ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸਟੀਸੀ ਸਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਰਕ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਰੱਖੋ ਦੋਸਤੋ। ਕੱਲ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਲਸੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਰਾਈਟ। ਕੱਲ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਸੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਵੈਸੇ 4 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ 15/11/2025 ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 15/11/2025 ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਅਗੇਨ ਆਪ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਨਤੇਰਸ ਦੀ ਔਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕਮਾਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸੀਲਿੰਗ ਅਚੀਵਰ ਬਣੀਏ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਐਸਟੀਸੀ ਰੈਂਕ ਅਚੀਵ ਕਰੀਏ। ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਮਾਈ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।